Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundar Sulakshna and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see Standard 12th SPCC chapter number 1 from Secretarial Practice SP Issuing of Share. As we have completed the previous chapter, so today we are moving on with a new chapter in a very detailed manner. So today we are starting from the part 2, chapter number 1, the issuing of shares. So in a company, how to issue a share, rather than that, how to deal up with issuing of the share. What are the legal procedure? What are the terms that we can use up in that portion, and how we have to deal up in that portion, that we are going to see up in a very detailed manner in this chapter. So students, without wasting the time, now let us move on with the line to line explanation of the chapter from the textbook in the further PDF. So students, now let us move on with the today's portion. So as I said, we are starting up with part 2, Secretarial Practice, Issues of Shares, chapter number 1. What we are going to learn in this chapter, the procedure of share application. Share application के लिए क्या प्रोसीजर करना चाहिए, शेयर अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर होता है, लीगल रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोविजन शेयर अलॉटमेंट्स में क्या दिया जाता है, इरेगुलर और लीगल शेयर अलॉटमेंट्स की क्या इश्यूज और किस तरीके से देखा जाता है, रिनोकेशंस यानी री अलॉटमेंट्स ऑफ शेयर और फोरफिटिंग्स ऑफ द शेयर्स कैसे किए जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट, शेयर की कॉलिंग कैसे की जाती है, शेयर फॉरफिटिंग कैसे किया जाता है, एंड सरेंडर ऑफ द शेयर्स, शेयर लियन एंड शेयर डिविडेंड के बारे में हम डिटेल में देखेंगे. सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द इंट्रोडक्शन. So I am going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed manner. A public company invites the general public to subscribe to its share by an invitation through a prospectus. The company also issues securities through private placement. In addition to these, shares are also issued by the companies through right shares and bonus shares. It is necessary for a company to fulfill the provision of Security Contract Regulation Act 1956, the Company Act 2013 and guideline issued by the Securities and the Exchange Board of India under Securities and Exchange Board of India Act 1992 for public issues of shares and other securities in India. कोई भी पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स को खरीदने के लिए यानी सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर सकता है, इनविटेशन दे सकता है, बट किसके थ्रू, तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू. जो ब्राउशर्स वगैरह हम बोलते हैं, एडमिशन के टाइम पे हम जो ब्राउशर्स बुकलेट्स वगैरह देखते हैं, वैसे ही शेयर का भी प्रोस्पेक्टस होता है. उसके थ्रू वो कोई भी इंडिविजुअल या पर्टिकुलर जनरल पब्लिक को अपने कंपनी के अंदर शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए बुला सकता है. हर एक कंपनी अपना सिक्योरिटीज इशू करता है, इवन प्राइवेट प्लेसमेंट में भी इशू किया जाता है. इसके अलावा शेयर्स कैसे इशू किए जा सकते, तो राइट शेयर और बोनस शेयर के थ्रू भी शेयर्स इशू किए जाते. इन एडिशन टू दैट, अगर हम बात करते हैं, हर एक कंपनी को अपना प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो 1956 में उन्होंने फुलफिल किया है, यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन करते वक्त इस एक्ट के रजिस्ट्रेशन एक्ट करवाना पड़ता है. हर एक कंपनी को जो शेयर इशू करवाना चाहता है उसके हिसाब से उसको फुलफिल करना पड़ता है. इवन कंपनी एक्ट 2013 में एक नया गाइडलाइन देखा गया था, जिसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू ये दिया गया था कि कोई भी पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स अगर कोई कंपनी करता है तो उसको उनके थ्रू ही करवाना चाहिए. इस तरीके से प्रोस्पेक्टस देखे गए. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज टेल अप इन द फर्दर पोर्शन. Thus, a public company raises share capital through public issue, right issue, bonus issue, and private placement. Along with initial public offering, existing shareholders can also offer putting for their holdings to the general public through the prospectus by taking permission of the board of directors. This is called offer for sale. The prospectus is any kind of notice, circular, advertisement or any other document through which the company invites the public to subscribe to its securities.
तो ये जो एक्ट 1992 में एसबीआई ने दिया था, जो 2013 में कंपनी एक्ट के अंदर देखा गया था, इसमें ये बताया गया है कि कोई भी पब्लिक कंपनी 4 तरीके से शेयर कैपिटल इशू कर सकता है। एक तो पब्लिक इशू, जनरल पब्लिक को इशू करना, राइट शेयर इशू करना, बोनस शेयर इशू करना, या प्राइवेट प्लेसमेंट यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को प्रोसीजर के लिए इंक्लूड अप करना, प्राइवेट प्लेसमेंट को देना। इस तरीके से ये 4 तरीकों से कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल इशू किया जा सकता है। अगर हम इनिशियल ऑफरिंग की बात करते, कोई भी नया कंपनी अगर शुरू किया जाता है तो पब्लिक कंपनी को कहीं ना कहीं जो है 60% पब्लिक शेयर को, पब्लिक लोगों को इंक्लूड करना चाहिए, इसलिए वो शेयर कैपिटल इशू करता है। उसके अलावा जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग होल्डर है, जैसे मैं हूं, मैंने एक कंपनी में शेयर खरीदा है, अगर मुझे अपना शेयर्स बेचना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैं परमिशन लेके अपना शेयर्स इनिशियली मार्केट में सेल पे रख सकती हूँ, जिसे ऑफर फॉर सेल भी माना जाता है। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या? प्रोस्पेक्टस का मतलब कोई भी काइंड का नोटिस आना, सर्क्यूलर आना, जैसे कल छुट्टी ऐसा सर्क्यूलर स्कूल में आता है ना, वैसे सर्क्यूलर आना रिटर्न फॉर्म में, एडवर्टाइजमेंट देना, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना जिससे ऐसा लगे कि कंपनी पब्लिक को अपनी सिक्योरिटी खरीदने के लिए इनवाइट करता है, तो उसे कहीं ना कहीं शेयर इन्विटेशन माना जाता है। सो नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज गिवन, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। द कंपनी टेक्स हेल्प ऑफ वेरियस इंटरमीडिएट लाइक लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट, bankers to the issue, underwriter, depositories, credit rating agencies, stock exchange, etc. to complete the entire process of public issue. The company secretary initiates the process of issuing securities with the help of these intermediates by fulfilling provisions of prevailing laws. After obtaining sanctions of prospectus from SBI, the procedure of public issue can be divided into 2 parts: procedures of share application and allotment of share. सो यहाँ पे हर एक कंपनी को हेल्प लेना पड़ता है वेरियस इंटरमीडिएट्स का। वो आर द वेरियस इंटरमीडिएट्स, द पर्सन हु आर इन बिटवीन द पब्लिक, जनरल पब्लिक एंड द कंपनी। तो ऐसे कौन कौन है? तो लीड मैनेजर है, रजिस्ट्रार है, ट्रांसफर एजेंट है, बैंकर्स टू द इशू रखते हैं, फिर अंडर राइटर होते हैं, डेपोजिटर्स होते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है और स्टॉक एक्सचेंज। ये सारे लोगों को इंटरमीडिएट्स की तरह लिया जाता है एंटायर प्रोसीजर जिसमें हम पब्लिक इशू करते हैं। इवन कंपनी की जो सेक्रेटरी होती है वो इनिशिएट करती है इस प्रोसेस के लिए। जैसे मैंने बोला, एसपी का पूरा प्रोसेस जो है, सेक्रेटरी प्रोसेस जो होता है, उसकी जो प्रैक्टिस होती है उसके बारे में हमें समझाता है। नॉट ओनली फॉर बीइंग, हमें सेक्रेटरी नहीं बनना है तो हम नहीं सीखे, ऐसा नहीं होता है, बट ये एक बेसिक नॉलेज होता है जो हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। तो ये जो शेयर इशू की प्रोसीजर होती है उसमें इन इंटरमीडिएट्स की, जो अब हमने इंटरमीडिएट्स की नाम देखा, उनकी हेल्प लेके कंपनी का जो प्रिवेलिंग लॉ है उसको यूज करके सेक्रेटरी ये सारी प्रोसीजर करती है। और इवन तुम्हें पता है जो प्रोस्पेक्टस होता है वो डायरेक्टली हम कोई भी पब्लिक को नहीं दे सकते, इसलिए उसको एसबीआई से सैंक्शन करवाना पड़ता है, पास करवाना पड़ता है। जैसे वो पास होता है उसके बाद इस प्रोसीजर जो पब्लिक इशू यानी जनरल पब्लिक से जो शेयर इशू का प्रोसीजर है उसको 2 पार्ट में देखा जाता है। फर्स्ट पार्ट है प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन एंड सेकेंड पार्ट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। So let us see what is the procedure of share application in a very detailed manner. The procedure for share application. The procedure for share application can be divided into the following stages. नीचे following stages यानी procedure दिया गया है जिसे एक एक स्टेज को हमें फुलफिल करके ये प्रोसीजर करना पड़ता है शेयर इशूइंग करवाने के लिए. What is that? Let us see that in a very detailed manner. The first one is opening of a bank account. I'm going to read it out, listen it out carefully. Bankers to the issues are appointed by a company to make all the transactions related to the issues of share. The company can open a current account in any scheduled bank for making transactions regarding the issues of share. For the purpose of public issue, the company opens a special bank account with the banker to the issue, which is known as escrow bank account. This account is opened by presenting a copy of the resolution passed in the meeting of boards of directors regarding opening of the account along through other documents.
While opening this account, company assumes that the share application money will be deposited in this account and total amount including share capital and premium, if shares are issued at premium, will be transferred to the company's account only after completion of the process of the share allotment. This account is closed after the completions of the process of share allotment. ठीक है, बैंकर्स टू इशू, हमें शेयर इशू करने के लिए एक बैंकर को तो अलॉट करना पड़ता है, तो बैंकर टू इशू जिसे हम अपॉइंट करते हैं, कंपनी एक बैंकर टू इशू को अपॉइंट करेगा जो ये सारी जो शेयर्स को इशू करने वाले उसकी सारी ट्रांजेक्शन की देखरेख रखेगा। कंपनी क्या करेगा, एक करंट अकाउंट, यू नो दैट करंट अकाउंट ही कंपनी के लिए ओपन होता है, तो एक करंट अकाउंट एक शेड्यूल्ड बैंक के अंदर ओपन करेगा जिससे जो भी ये शेयर इशू के रिलेटेड जो इशूइंग ऑफ शेयर देखा जाता है उसके रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन वहीं किया जाए। हम किस पर्पस से इसको ओपन कर रहे हैं, तो कंपनी एक स्पेशल बैंक अकाउंट इस पर्पस से ओपन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अभी जो नए शेयर्स हम प्रोसीजर शेयर एप्लीकेशन के लिए डालने वाले उसको ही, उस ट्रांजैक्शन को ही ये अकाउंट देखे, इसलिए इस पर्टिकुलर स्पेशल बैंक अकाउंट को एस्क्रो बैंक अकाउंट भी बोला जाता है। ये अकाउंट ओपन करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिजोल्यूशन यानी कौन से मीटिंग में ये रिजोल्यूशन पास किया गया था उसका एक कॉपी और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी का होता है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, ये सारी डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करवाता है। जैसे बैंक अकाउंट ओपन होता है तुरंत ही ये एज्यूम कर लिया जाता है कि अब ये जो शेयर एप्लीकेशन होगा उस एप्लीकेशन के जो भी पैसे होंगे वो इसी अकाउंट में आएंगे और तब तक आएंगे जब तक शेयर अलॉटमेंट नहीं हो जाता है। जैसे ही शेयर अलॉटमेंट होता है उसके बाद ये अकाउंट बंद किया जाता है। अगर शेयर्स प्रीमियम में इंक्लूड किया गया है, यानी कभी कभी शेयर्स एट पार एट प्रीमियम देखा जाता है, अगर प्रीमियम में हमने शेयर इशू किया तो प्रीमियम अमाउंट भी इसके अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा, यानी इसी खाते में डाला जाएगा। और जैसे ये कंप्लीट होता है तुरंत ही ये जो है वो कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, बट शेयर अलॉटमेंट के बाद। शेयर अलॉटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होने के बाद ही ये किया जाता है। सो नाउ लेट अस रीड द फर्दर पोर्शन एंड अंडरस्टैंड अबाउट इट इन अ वेरी वेल manner. As per the latest guidelines of SBI 1/2016, share application can be made only through ASBA application supported by blocked amount. According to the ASBA procedure, the share application money is blocked by the bank where the applicant holds his account. The money remains blocked till the share allotment is done and the application money is transferred to the company's account as soon as the allotment of the share is done. The amount of the share allotted is transferred from the bank account to the applicant to the bank account of the company. Thus, the question of refunding the application money on shares are not allotted does not arise. तो यहाँ पे बैंक क्या करता है, एज पर नया गाइडलाइन जो SEBI के थ्रू 1/2016 में किया गया था, जो कस्टमर्स के हित में यानी कस्टमर्स के बेनिफिट में देखा गया, उसमें एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट ASBA को लागू किया गया। व्हाट इज ASBA? ASBA का प्रोसीजर का मतलब हम जो भी शेयर एप्लीकेशन करते हैं वो अमाउंट बैंक ब्लॉक कर देता। फॉर एग्जाम्पल ABZ कंपनी ने 10 लाख का शेयर इशू किया, ठीक है, 10 लाख का शेयर इशू किया, तो आपको पता है पूरा का पूरा 10 लाख का सब एप्लीकेशन तो नहीं होगा, 11 लाख 12 लाख ऐसा होगा। तो बैंक क्या करता है, जो पर्टिकुलर अमाउंट जो आता है एप्लीकेशन का वो बैंक के पास ब्लॉक कर लेता है, वो कंपनी को नहीं देता है, वो ब्लॉक करके रखता है जब तक अलॉटमेंट ना किया जाए, यानी जब तक एक पर्टिकुलर इंसान को ये तुम्हारा शेयर है ऐसा अलॉट नहीं किया जाता तब तक वो पैसा बैंक के पास जमा पड़ा रहता है। जैसे ही शेयर अलॉटमेंट होता है उसके बाद जो शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट देखा गया, यानी 10 लाख का शेयर इशू किया गया, 12 लाख की एप्लीकेशन आई तो 10 लाख ही अलॉट किया जाएगा, बाकी के जो 2 लाख है वो बैंक अपने पास रख के बाकी सिर्फ 10 लाख को ही वो कंपनी को देता है, यानी बाकी के जो 2 लाख है जो लोगों ने शेयर सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन डाला होगा, ऑब्वियसली बैंक के पास डाला है, बैंक के पास डिटेल है, बैंक खुद ही उनको वो रिटर्न कर देता है। इस तरीके से बैंक क्या करता है, सिर्फ अलॉटेड शेयर का पैसा ही
उस पर्टिकुलर कंपनी को देता है, बाकी के शेयर वो खुद ही रिफंडिंग कर देता है। तो यहाँ पे कंपनी को कुछ रिफंड करना पड़ेगा या कुछ तकलीफ लेना पड़ेगा, इवन पैसे जो इन्वेस्टर्स ने लगा है वो कंपनी ले लेगा, वापिस नहीं देगा, ऐसे कोई इशू नहीं रहता। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या देखा, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट बाय द कंपनी। तो इस तरीके का बैंकर टू द इशू का काम बैंक करता है। So next portion is receiving share application. Let us see what is receiving share applications. Once the prospectus is sanctioned by the SEBI, the company gives advertisement in the newspaper and officially announce the period during which the public offer will remain open for the public subscription. Generally, this period is 3 to 5 days. All investors willing to apply for shares can obtain share application forms from the share brokers, sub-brokers, stock exchange or bank recognized for the process of ASBA. Investors will deposit the duly filled in the share application form along with all details, signature and copy of permanent account number to brokers who manage to deposit the application form to the bank recognized for ASBA process so that the share application money can be blocked in the respective bank account of applicant. ठीक है, तो जैसे ही अकाउंट ओपन कर दिया जाता है उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन। बट शेयर एप्लीकेशन करवाने के पहले प्रोस्पेक्टस को सैंक्शन करवाना पड़ता है, जो बुकलेट या जो सर्कुलर है, जो नोटिस है, वो SBI से सैंक्शन करवाना पड़ता है, पास करवाना पड़ता है। जैसे ही वो पास होता है कंपनी क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट देगा न्यूज़पेपर में, अनाउंस करेगा पब्लिकली, लोगों को बताएगा कि इस तरीके का पब्लिक ऑफरिंग शेयर मार्केट में इस कंपनी का शेयर ओपन किया गया है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और वो टाइम पीरियड 2 से 5 दिन का होता है। अब जो इन्वेस्टर्स अब शेयर्स में जो इन्वेस्ट करना चाहता है, जो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, शेयर ब्रोकर्स या सब ब्रोकर्स या स्टॉक एक्सचेंज या जो बैंक जो इसके साथ डीलअप है उस रिकॉग्नाइज्ड बैंक के पास जाके शेयर एप्लीकेशन का फॉर्म लेंगे। जैसे ही शेयर एप्लीकेशन का फॉर्म वो लेंगे तो ये जो प्रोसीजर जो किया जा रहा है शेयर एप्लीकेशन में, उसमें सारे डिटेल्स क्या क्या हमें भरना है, हमारी डिटेल्स, कॉपी यानी हमारा जो पैन कार्ड का कॉपी होता है वो अटैच करने का, और कौन सा एप्लीकेशन का फॉर्म हम जो भर रहे हैं उसमें डिपॉजिट हम कितना कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें फिल करने के बाद रिकॉग्नाइज्ड बैंक जो ASBA का प्रोसेस कर रहा है वहाँ पे अपना शेयर एप्लीकेशन मनी को पे कर देंगे, जिससे हमारा जो अकाउंट है या हमारा जो पैसे है वो रिस्पेक्टफुली उस बैंक के अंदर ब्लॉक कर दिया जाए। एप्लीकेंट डायरेक्टली भी बैंक में जाके इस प्रोसीजर को कर सकते हैं या जो है ब्रोकर के थ्रू भी वो करवा सकते, जिससे क्या है एप्लीकेंट की पैसे उस बैंक के बाद सेफ्टी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए। सो नाउ लेट अस सी द फर्दर पोर्शन। Applicants can directly approach bank recognized for ASBA process and deposit the share applications for further procedure of blocking the application amount. No check are required for the process of ASBA. Under the ASBA process, it is compulsory to deposit the application form to any of the recognized banks of the bank for ASBA process in which the applicator hold his bank account, because the bank requires to block the applicant money in the account. The process for allotment is carried out after verifying the specimen of signature in the bank account and the demat account of applicant. After receiving the share applicants and blocking the application money, the bank informs the same to the registrar of the company and also to those applications of which the application's amount is blocked are handed over to the lead manager of the company by bank. तो जैसे ही एप्लीकेशन भर दिया जाए तुरंत एप्लीकेंट क्या करता है, डायरेक्टली ASB का प्रोसीजर जो बैंक में होता है उस प्रोसीजर के पास जाके डायरेक्टली प्रोसेस कर सकता है, एप्लीकेशन को वहाँ पे सबमिट कर सकता है। कोई चेक या कोई चेक कैश देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ASBA के लिए, आपको सिर्फ फॉर्म भर के अपना अकाउंट डिटेल्स मेंशन करके देना है। ASBA के प्रोसेस में ये कंपलसरी है कि आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म डिपॉजिट करते हो वो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बैंक के ब्रांच में होना चाहिए। जो ASBA का प्रोसेस कर रहा है उस एप्लीकेंट बैंक का जो होल्ड है वहाँ पे उनको करना चाहिए। एप्लीकेंट्स जो अपने होल्ड बैंक अकाउंट है उस डिटेल्स को उस SBA बैंक तक पहुँचाना पड़ता है।
रदर देन दैट बैंक में उसके लिए कोई पैसे या कोई चेक देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने ये कर दिया, तुरंत वो बैंक क्या करेगा, आपका जो भी बैंक में अकाउंट है वहाँ पे आपने जितने का एप्लीकेशन किया, जैसे 2000 3000 का, तो उतना पैसा आपके अकाउंट में फ्रीज यानी ब्लॉक करके रख देगा जब तक अलॉटमेंट आपके शेयर का ना दिया जाए। आपका स्पेसिमेन सिग्नेचर और डीमैट अकाउंट में आपका सिग्नेचर दोनों को मैच किया जाएगा। अगर सेम है तो फिर आपका अकाउंट वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी सिर्फ उतना अमाउंट जितना आपने सब्सक्राइब किया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही शेयर एप्लीकेशन मिलता है, उस शेयर एप्लीकेशन का जो मनी होता है वो तो ऑलरेडी बैंक में ब्लॉक ही रहता है, जो बैंक ने ले लिया ऐसा हम मान लेते, तो बैंक वो इन्फॉर्म करता है रजिस्टर ऑफ द कंपनी को, जो कि लीड मैनेजर तक पहुंचा दिया जाता है। यानी एक पर्टिकुलर कंपनी की लीड मैनेजर तक ये सारी चीजें एप्लीकेशन पहुंचा दिए जाते और आपका उतना अमाउंट वहां पे ब्लॉक हो जाता है। सो हियर वी आर रिसीविंग द शेयर application. So now let us see the classification of the share application. So classification of share application, a statement of share application is prepared after receiving share application. Applications with incomplete information are rejected. Application qualifying for share allotment are classified into various category of investors. As per SBI guidelines, application can be classified into retail investor, non-institutional high network investor, institutional investors, employees of the companies, if shares are reserved for allotment to employees of the company. As per SBI guidelines, it is necessary to reserve 10% of share issued for retail investor. Generally, a company discloses the reservation made for each class of investor for shares to be allotted in its prospectus. आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन तो हमारे पास आ गया, हमने 10 लाख का शेयर इशू किया, हमारे पास 13 लाख का एप्लीकेशन आ गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन इज द थर्ड स्टेज। ये स्टेटमेंट में शेयर एप्लीकेशन जो हमने रिसीव किया उसके बाद जो है हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो एप्लीकेशन मिले वो बहुत सारी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हो। हमने ये मान लिया हमारे 13 लाख में से 50,000 एप्लीकेशन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद 12,50,000 एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लायक है जिन्हें हम शेयर दे सकते, तो उस शेयर दे सकते वैसे हमें लगता है उसे भी हम इन्वेस्टर के कैटेगरी के हिसाब से अलग करेंगे। एसबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से ये कौन से टाइप से, फर्स्ट है रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, सेकेंड है नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर जो इंस्टीट्यूशनल नहीं है और हाई नेटवर्थ रखते, थर्ड है इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स माने जाते हैं, फोर्थ है एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, हो सकता है उसी पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉय ने भी इशू किया, अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी उसमें रजिस्टर करवाता है तो उसके लिए पहले से ही ऐसा रिजर्व्ड अलॉटमेंट एम्प्लॉय के लिए उस कंपनी को शेयर इशूइंग में करना चाहिए। इवन एसबीआई गाइडलाइन रूल्स के हिसाब से 10% ऑफ जो शेयर है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को देना ही चाहिए कंपल्सरीली। उसके बाद जनरली कंपनी ये सारी चीज़ों को डिस्क्लोज कर देता है, यानी जो प्रोस्पेक्टस होता है, जैसे मैंने बोला आप एडमिशन लेने जाते हो तो उसमें लिखा होता है ना योगा क्लास है, डांस क्लास है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें मेंशन किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी प्रोस्पेक्टस पे मेंशन किया जाता है कि कौन से क्लास ऑफ इन्वेस्टर के लिए कितना रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे एसबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से 10% जो रिटेल इन्वेस्टर को मिलना ही चाहिए। उसके अलावा अगर 20 दिया गया है कंपनी के थ्रू तो वो मेंशन कर सकता है, 15% एम्प्लॉयज़ के लिए तो भी मेंशन कर सकता है। इस तरीके से प्रोस्पेक्टस में हर एक चीज़ को मेंशन करवाना पड़ता है। So until this we are going to see today. I hope you all have understood the today's portion in a very well manner. So let us move on with a short summarization of the topic that we have seen today. Friends, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. Today we have seen the issuing of shares, introduction and the process of share application in a very detailed manner. So हमने ये देखा कि पर्टिकुलर कंपनी को जब पब्लिक शेयर इशू करना पड़ता है तो उसके लिए क्या क्या लीगल प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। तो उसमें हमने ये देखा पर्टिकुलरली हर एक कंपनी को इनिशियल ऑफरिंग होता है, ऑफर्स फॉर सेल होता है, यानी एग्जिस्टिंग जो कस्टमर होते हैं वो ऑफर फॉर सेल करते हैं, अगर वो दोबारा बेचना चाहते हैं तो जिसे ऑफर फॉर सेल माना जाता है। उसमें हम जो है पर्सनल सिक्योरिटी कंपनी की जो होती है वो सारी चीज़ों को हैंडल करती है, कंपनी के
रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से शेयर इश्यूइंग का प्रोसीजर ले जाने की कोशिश करती है। जैसे ही प्रोस्पेक्टस SEBI के रूल्स के हिसाब से सैंक्शन हो जाता है, उसके बाद दो तरीकों में चीजों को क्लासिफाई किया जाता है। एक है द प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन, दूसरा है प्रोसीजर ऑफ द शेयर अलॉटमेंट। उसमें हमने प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन में देखा था, जिसमें फर्स्ट है ओपनिंग एन अकाउंट। कंपनी को पर्टिकुलरली अपना एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, जिसमें बैंकर्स टू इशू उस पर्टिकुलर शेयर इशू के साथ जो बैंक डील करने वाला है उसमें उनको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जिसके लिए उनको जो है कंपनी का जो रिजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पास किया उसके साथ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करवाना पड़ता है, और पर्टिकुलरली वो अकाउंट सिर्फ और सिर्फ शेयर इशू के लिए, पर्टिकुलर इशू के लिए यूज अप किया जाता है। यहाँ पे इस अकाउंट जो है SEBI के गाइडलाइन के हिसाब से ओपन किया जाता है, जहाँ पे ASAP देखा जाता है, यानी एश्योरिटी ऑफ द सेफ्टी यहाँ पे होता है। कस्टमर्स के पैसे ना चला जाए इसलिए पैसे को ब्लॉक किया जाता है। जब तक शेयर अलॉट ना किया जाए तब तक शेयर एप्लीकेशन के पैसे इस अकाउंट में सुरक्षित रहता है, इसीलिए ये अकाउंट ओपन करना पड़ता है। आफ्टर दैट वी सी दैट रिसीविंग द शेयर एप्लीकेशन, जैसे ही प्रोस्पेक्ट सैंक्शन हो जाता है, अकाउंट ओपन हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, पब्लिकली लोगों को इन्वाइट करते हैं कि भाई इस बैंक का इतने से इतने दिन टाइम पीरियड 3 से 5 दिन तक हमारा शेयर इशू होने वाला है, जिसको इन्वेस्ट करना है वो कर सकता है। ऐसा हम एक इन्विटेशन देते, जिसमें लोग इन्विटेशन में एप्लीकेशन फॉर्म भरते। तो एप्लीकेशन फॉर्म वो पर्टिकुलरली शेयर ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स या जो है SEBI या पर्टिकुलर बैंक से जाके अवेल करवा सकते। फॉर्म में उनको अपना पैन कार्ड डिटेल, उनके अकाउंट डिटेल, कितना शेयर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें उनको एप्लीकेशन लेटर में फिल करके पर्टिकुलर बैंक में सबमिट करना पड़ता है। वो डायरेक्टली भी कर सकते या वो कोई एजेंट को रख के भी कर सकते, यानी शेयर ब्रोकर्स को रख के भी कर सकते। जैसे ही ये किया जाता है, तुरंत ही उनका पर्टिकुलर बैंक में जो पैसे हैं जो वो एप्लीकेशन के लिए दे रहे, वो पैसा ब्लॉक कर दिया जाता है ASAP के रूप में। जैसे ही वो पैसे ब्लॉक होता है, तुरंत ही वो लीड मैनेजर तक जितने एप्लीकेशंस आए वो एप्लीकेशन पहुंचाए जाते। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर इन्वेस्टर्स। जैसे ही एप्लीकेशन आ गया, फर्स्ट हमने 10 लाख का पब्लिक शेयर इशू करने की सोचा, फिर हमने अकाउंट ओपन किया। अकाउंट ओपन करने के बाद हमने एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस सैंक्शन होने के बाद इशू किया। जैसे ही वो इशू हुआ, तुरंत हमें एप्लीकेशन मिला। 10 लाख के लिए पर्टिकुलरली 10 लाख ही मिला, ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है 9 लाख मिले हो सकता है 13 लाख मिले हो, इस तरीके से कम या ज्यादा कुछ भी मिला हो सकता है। तो जो मिला है उसमें से हम कैटेगराइज करते। कैटेगराइज कैसे करते हैं, तो SEBI के गाइडलाइन के हिसाब से जो कैटेगरी दिया गया है उसमें हम इन्वेस्टर की कैटेगरी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने इनकम्प्लीट फॉर्म है उसको हम रिजेक्ट कर देते। उसके बाद जितने बचे हैं उसमें से हम रिटेल इन्वेस्टर देखते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल जो नेटवर्थ इन्वेस्टर्स है उनको देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्थ इन्वेस्टर्स देखते हैं, फिर हम एम्प्लॉय इन्वेस्टर्स देखते हैं। पर्टिकुलर कंपनी के ही एम्प्लॉयज जब इन्वेस्ट करते हैं वो इस 4 कैटेगरी में देखा जाता है। अगर एम्प्लॉय के लिए उन्हें शेयर इशू करना है तो उन्हें प्रोस्पेक्टस में ये चीज पहले से ही मेंशन करना पड़ता है और कंपनी के प्रोविजन में भी ये करके रखना पड़ता है। आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट SBI के गाइडलाइन के हिसाब से हमें 10% रिटेल इन्वेस्टर्स की शेयर्स तो इशू कंपल्सरीली करना पड़ता है। रदर देन दैट हमने ये देखा हमारा जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें हमें डिटेयली हर एक कितना रेट कितने इन्वेस्टर के लिए दे रहे हैं ये हमें उन्हें मेंशन अप प्रोस्पेक्टस पे करना पड़ता है। तो यहाँ तक का डिटेल हमने डिटेल में देखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर. I hope this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.